Yes, welcome to this press batch and demonstration class of Indian polity. My At the very outset, my best wishes for your journey. It's a successful culmination of your journey, and even journey to be very happy and pleasurable. My best wishes. I am JKP Singh. I'm a faculty here teaching public administration as optional and Indian polity as the general studies paper, GS paper 2. My dear friends, this is the second batch in this with me, and we will be interacting here for another few months and complete the syllabus in time in a structured and very step-wise step in a very lucid way, uh, cut to cut manner, so that you can understand each and every aspect of the subject. Number one, how the another step follows the next step. There is a sort of coherency in the syllabus. Unless we understand one part of it, you cannot understand probably, or it may be difficult for you to understand the other side, other aspect of the syllabus. Therefore, I request you not to skip any part in between. Otherwise, it will be a bit of difficulty for you to understand the entire syllabus in totality. And questions are asked not exactly uh, mm, from one aspect. Mostly questions cover one or two aspects. As for example, if UPSC asks you the amending powers of the constitution by the parliament, then you have to have the feel of executive piloting the amendment of the constitution. You need to know the constitution itself. You need to know uh, which part of the constitution is being amended. So you need the feel of the entire things in totality. If I want to know her, or if I want to know you, I need not know only your name. I should know where are you from, what is your culture, what is your background, what is your context, why you want to civil services, so that I know you personally. And to know a person, you need to know the person in totality. Therefore, if you want to study Indian polity and fetch good marks, you need to know the Indian polity in totality. Uh, so we have uh, Saksham Singh. He has joined. Welcome, Saksham. And as we know, the civil services journey is seemingly, or as we have been told by our friends, by our guardians, by our parents, or peers, or somebody else, newspapers, it's a very difficult journey, and you have to study 18 hours. Somebody saying you have to study 14 hours. You have to have a group discussion every day, and all sorts of halo around. I am the one who don't believe in this. Myself, 88 batch civil servant. I know the hardship, and I know how I pass the examination. If I can pass, one and each of you can pass the examination. I have absolutely no doubt about it. What you need is basic knowledge of the subject. If you go through the syllabus of this UPSC civil services examination, they have specifically told at the outset itself that you should be a well educated person. The level of questions will be BA honors level, below the MA level.
In other words, MA is slightly emphasizes on a specialization. You need not have a specialization at all. You should be a person with well educated, good education. Nothing more than that. No specialized knowledge is required. This is what I'm not saying so. I'm saying, I'm conveying what UPSC says in its syllabus. And you should be aware of the developments happening around you, your society, your state, your country. If the government is emphasizing on cooperative societies, the need for a cooperative society in the country, you expect a question on cooperative society. You need to know the cooperative society, because this is expected from the working of a career civil servant, that what is happening around, you should be able to handle that situation once you get into service na. So to prepare your post civil services career, in civil service career, sorry, your educational training, academic training should also be like that. What is happening around, you should be aware of it. If in 2025 they have asked questions on constitutional morality, and they have asked question on this amending powers of the parliament, okay, as we see from the ramparts of the red fort on 15th August, Prime Minister said the need for constitutional, in other words, in many words he said so, the need for corruption less, corruption free, constitution based governance in the country. So in other words, that becomes a message for us, and when it becomes a message for us, we expect a question on it. They have asked a question on it. So use your eyes and ears and eyes should be open. First task, the first thing before you start studying your syllabus or your coaching institute or opening a book, you should keep your ear and eyes open, so that you know what is happening around. For knowing it, you need to read newspaper every day. Which newspaper? As you like it. Mostly I am experiencing students either studying the Hindu or the Indian Express. But as a faculty teacher, I leave it to you that if you are able to gather information what is happening in and around the country, and you are able to know it through the Times of India. I'm just making an example. I won't insist on Express or Hindu, but Express and Hindu have tailored themselves to cater the requirement of the civil services aspirants. So I am recommending or I am referring to it. When I was preparing for civil services, I used to, then Indian Express and the Hindu was just not available in Delhi at that time. I'm talking of 86, 87, 88. And Indian Express was not a serious newspaper. It was a political newspaper. So we used to study Times of India. But one of my colleague used to study the Statesman. The Connaught Place published Statesman, Calcutta based basically. It was not a thick newspaper, only 5-6 pages, but he was the only guy who was studying Statesman, and we all were studying the Times of India. He got 6th rank in the civil services, became an IAS officer. So Statesman, he could gather the relevant information from the Statesman. Fair enough.
our time, Times of India was recommended by our friends. So, but Hindu and this Indian Express are generally referred to by the students. Hence, my reference to these two newspapers. The questions is basically to test your general awareness that I have already emphasized, and there are large variety of questions: ethics, polity, history, art, culture, blah blah blah, to test your general awareness in and around you on these aspects. So while you are reading newspaper, you should keep close watch on these topics. If some art related literature has come, I advise you to read that. If something economics, if economic tariff, as for example tariff these days, you should keep following the pattern of the tariff to have a proper knowledge about the tariff. So civil services, in other words, I am just summing up, civil services preparation is basically to keep your eyes, ear and internal sense open, inviting all types of information, keep gathering it, keep digesting it, keep assimilating it, and on the day of examination, what they ask you, you are supposed to write it. That's all. इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं इसमें. As simple as that. The problem starts how to digest them, how to keep accumulating them, how to process myself in such a way that whatever they ask in the question, through their questions, I am able to write it appropriately. It is an examination where you are supposed to write the answer of the questions. Question they will ask, answer you have to give it. This is the relationship between you and the UPSC. That's all. Nothing more than that. Reading you are doing. Now, since you have to write the examination, write answer, so you should be clever enough, you should be proficient enough, you should be efficient enough to write the answer. Your content should be such that what they ask you through the question, you are able to answer the question in a limited way and in the limited time. In limited words and limited time, they will ask you to answer. If I ask her to speak about herself in 3 sentences, now it is for her, what are the 3 most important things? She has enough, about 10 sentences she can also say about herself, or 20 sentences. I am so and so, I come from so and so place, my educational qualification is such and such, my interest in lies in such and such way, my father is this, my village is this, I have traveled so many places, I love, my hobby are so and. It is 20 sentence answer. But I am limiting her to give 3 sentences. If is able to give the entire 20 sentence feeling or sense or content in 3 sentences, she will get good marks and answer my question. So I have not seen any student not knowing the answer of a question. Everybody knows the answer of a question. One who knows it better, one who writes it better, and one he writes the way it should be, gets good mark. So practicing is another thing that you should be aware of and inculcate in yourself. The art of writing, and it will come through practice. So while we are studying Indian polity, we have to write the answer to the question.
That is a separate way of handling things. All these are not isolated. Reading, writing are all interlinked activities with one goal, to pass the examination. UPSC is very transparent. Its syllabus is very transparent. No question will come out of the syllabus. They want to recruit civil servants. So they have given you a syllabus. This is the topic, you prepare yourself. You prepare in 10 days, you prepare in 200 days, you prepare in 300 days, and I will limit your chance to 6. You get 6 chances, besides some more chances to some other candidates. But generally 6 chances. Prepare yourself. I'll ask you questions. You answer my questions. I'll give you marks. If your marks are better than others, 1,000 people, welcome to my club. That's all. Don't complicate things in life. Complicate करोगे तो मुश्किल अपने आप को लोगे. When Tendulkar play, please. We find Janvi Pathak has also joined. Saksham Singh has joined. Bhargav, Janvi Pathak, Bhargav, Saksham Singh has come. Okay, fine, welcome. So, do you follow cricket? Football? At least here 2 games mein entire people should be covered. Barring few exceptions. Have you seen Tendulkar and Dravids and Virat Kohli's? उनका एक शॉट लगता है जैसे कि वो मैं रहता तो मैं भी वो शॉट मार सकता था. इतना फ्लॉलेस सिंपल शॉट वो खेलते हैं. यदि कोहली प्लेज ए कवर ड्राइव, ही प्लेज एज इफ मैं भी रहता तो यार तो डिफिकल्टी ही नहीं था. तो सिंपल लुक्स. यदि मैसी फुटबॉल कैरी करता है और ड्रिबल करता है तो लगता है यार ये तो कोई चीज नहीं है, तो कोई भी कर सकता है. एक्चुअली अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे प्लेयर्स वो हैं जो डिफिकल्ट को भी सिंपल बना के खेलते हैं, पढ़ते हैं. योर अनदर टास्क टू मेक दिस डिफिकल्ट जर्नी एज सिंपल एंड एज स्मूथ एज पॉसिबल. डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स. ये पढ़ रहे हैं, चाय पी के पढ़ रहे हैं, पीते पीते 10 मिनट के लिए नीचे उतर करके देख रहे हैं मैं तो बहुत स्ट्रेन. यूजलेस. ऑल फैब्रिकेटेड, ऑल डिजाइन टू कंफ्यूज यू. जब तक मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा और डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा तब तक आप मेरे पास आओगे नहीं? आओगे ना. तो माई सक्सेस lies in making things difficult and your success lies in making difficult things simple as possible. Believe in yourself in making difficult things simple. जैसे ही वो चीजें सिंपल होगी, चीजें अपने आप प्रवाह में, फ्लो में आप सीखते चले जाओ. सिंपल मीन्स रीडिंग, राइटिंग, रिपीटिंग, नॉट लुकिंग फॉर मेनी सोर्सेस. करोल बाग से लेकर और उस गोल चक्कर तक यदि कोई चला जाए, ही फेसेस व्हाट आई कॉल, जैसे टेरर सब नहीं, टेररिस्ट सब है. इस सारे किताब के जो स्टॉल्स हैं सब टेररिस्ट बैठे हुए हैं. इतना किताब सामने रखा हुआ है और फोटोस्टेट कॉपी, नीला पीला किताब का इतना बंडल, फोटो कॉपी. आपको लगेगा कि इतना पढ़ना है. यार नहीं पढ़ना. इसको जिसने पढ़ा वो नहीं कुछ कर पाएगा. हर एक टॉप के लिए 1-2 किताबें होती हैं, 3 किताबें होती है, एक बेस बुक होता है, 2 सपोर्ट किताब होता है, बाकी गाइडेंस जहां से भी आप ले रहे हो. आज एजआईएस से ले रहे हो तो एजआईएस की जिम्मेवारी है. इफ यू आर विथ अस, माय रिस्पांसिबिलिटी इज टू गाइड यू, नॉट टू कंफ्यूज यू. तो ये जो कंटेंट टेररिज्म है ना अलोंग द रोड, उससे भी बच के रहना यार. और तैयारी करने का कोई फैंटास्टिक मेथड नहीं है. 1 घंटे पर चाय, कोई पानी पी रहा है, कोई फ्रेंड से बात कर रहा है, कोई मोबाइल से पढ़ रहा है, कोई वीडियो में पढ़ रहा है, ये पढ़ा, वो किताब पढ़ा, वो किताब खत्म नहीं हुआ कि किसी ने कह दिया
XYZ ऑथर का किताब देखा? नहीं, हम तो नहीं देखे। अरे उसमें तो वो टॉपिक बहुत अच्छा है, लगे अब वो परेशान होने, 3 दिन तक परेशान हो रहा है। एब्सोल्युटली बैड थिंग, ऑल आर ऑब्स्टेकल्स। हाँ, तुमको यदि वो पढ़ने में बुक अच्छा लगे तो जरूर पढ़ो। एक टॉपिक 2 टॉपिक के लिए कोई अलग किताब, अदरवाइज आपको सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि यू शुड बी अवेयर, जनरल अवेयरनेस अबाउट ए सब्जेक्ट, नॉट ए स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। वो सिलेबस बोल रहा है नॉट ए स्पेशलाइज्ड रिक्वायर्ड, मैं नहीं बोल रहा हूं। सिलेबस यूपीएससी का देखो, उसमें लिखा हुआ है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? और मोस्टली परेशानी का ही सबब है ये। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जरा सिलेबस का वर्ड। मैं तुमको पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग, मैं सिलेबस, आई एम कोटिंग सिलेबस। द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस in the general studies, entire general studies, I'm not talking about polity only, will be such that a well educated person will be able to answer the question, answer them without any specialized knowledge. Full stop. मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं। फॉर इंडियन पॉलिटी, आई रिपीट, फॉर इंडियन पॉलिटी, यदि आप एक न्यूज़पेपर थरो पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदू हो, आजकल थोड़ा एक्सप्रेस, मैं रिपीट कर दूं, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, अपने आप को उन्होंने थोड़ा सा टेलर कर लिया है, उस हिसाब से स्ट्रक्चर किया है कि स्टूडेंट्स उनके तरफ अट्रैक्ट हो, तो वो उस तरह की आर्टिकल्स, उस तरह की चीजें रहती है। तो देयरफॉर दीज 2 न्यूज़पेपर्स आर वर्थ रीडिंग दीज डेज। आप वो पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, क्लास में जो नोट्स दिया जा रहा है वो आपके पास हो प्रॉपर। जो क्लास में पढ़ाता है ना वो आपसे कम नहीं पढ़ता है, ये भी मैं बता दूं। मैं जब इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूं तो आई टेक नोट्स फ्रॉम डीडी बसु एंड सुभाष कश्यप एंड अदर प्लेसेस ऑल्सो। तो माई नोट कंटेन्स ऑल दोज थिंग्स। तो आप अननेसेसरी डीडी बसु पढ़ रहे हैं पूरा, इट इज फॉर द लॉ स्टूडेंट्स, इट इज फॉर द पॉलिटिकल साइंस में भी ऑप्शनल के लिए थोड़ा बहुत रेलिवेंट है, लॉ स्टूडेंट्स के रेलिवेंट, फॉर इंडियन पॉलिटी जीएस2 के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। और उसके लिए जो रेलिवेंसी वाला पोर्शन है वो तो आपको जो टीचर पढ़ा रहा है, इफ ही इज ए रियली वर्थ बीइंग कॉल्ड ए टीचर, तो वो तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, वो तो बताएगा ही बताएगा। सुभाष सिंह कश्यप के नुआंसेस अपने नोट्स में डालेगा ही डालेगा। वो सिर्फ लक्ष्मीकांत पर कन्फाइंड होकर रहेगा तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी ना। अरे सर, आप तो लक्ष्मीकांत से पढ़ा रहे हो, आप क्या 30 मार्क कहाँ हो? आपको पढ़ने से हम डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पढ़ लें, आप किस, व्हाट फॉर यूर हेयर। तो देयरफॉर इतने तक यदि आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर, लक्ष्मीकांत, क्लास नोट्स, मान लीजिए किसी और को कोई टॉपिक कोई अच्छा लग गया, किसी का जो रिसेप्टिव पावर एंटीना उसका इतना स्ट्रांग है कि वो कहेगा कि नहीं मैं तो डीडी बसु पढ़ के ही छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, पढ़ ले, नॉट वर्थ, यू आर नॉट सपोज टू डू स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इससे ज्यादा दौड़ भाग, उसके यहाँ जा रहे हैं, वो नोट पढ़ रहे हैं, वो पेज पढ़ रहे हैं, दाएं कर रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड। एंड आई एम श्योर यू विल मेक इट इफ यू स्टिक टू इट। उसमें इंपॉर्टेंट है रेपिटिशंस की, इंपॉर्टेंट है पीरियोडिकल रिविजिटिंग की सब्जेक्ट की। फ्यू फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। किसी को कोई चीज नहीं, फेडरलिज्म किसी को नहीं समझ में आ रहा है, किसी को प्रियम्बल नहीं समझ में आ रहा है, प्रियम्बल के जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल राइट्स ने, ड्यूटीज नहीं समझ में आ रहा है, ड्यूटीज के कुछ फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या इंटरेक्शन है वो, देन योर फ्रेंड्स कैन एडवाइस यू, योर फैकल्टी टीचर शैल एडवाइस यू। पर्याप्त है मेरे भाई, इतना इतना कर लो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत फर्क पड़ेगा। एंड इट विल मेक द डिफरेंस बिटवीन यू एंड दोज हु आर रीडिंग टू मेनी थिंग्स फॉर नथिंग। टू मेनी थिंग्स मीन्स नथिंग फॉर मी एज फार एज यूपीएससी सिलेबस इज कंसर्न। ठीक है, अब आते हैं ब्रास टैक्स पर।
वी आर प्रिपेयरिंग इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. चलो, जो हमारा सिलेबस है सिविल सर्विसेज का, जस्ट आई हैव गिवन अ बैकग्राउंड. आई एम कंसर्न विद पॉलिटी, बट यू हैव टू पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर, environment and biodiversity, science, technology, international relations, current affairs, persons in news होगा. एस लगा लेना अपने मेंटल स्लेट पर. अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स. मैं जब आपसे कह रहा था ना कि जो आंसर रिपीट करना, रिविजिट करते रहना, ये न सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी है, ये पीपीटी तैयार करने के लिए भी जरूरी है फॉर्मूला. यदि वो रिविजिट किया होता तो इसमें एस लगा दिया होता. तो आपसे भी वो गलती होगी, मे भी जानबूझ के रखा है कि हमारे स्टूडेंट समझ जाए कि कैसे गलती को ओवरकम करना चाहिए, कि जानबूझ के उसने छोड़ दिया कि सर तो बता देंगे. ऐसा गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों से. तो जब आप रिपीट करोगे तो यू कैन ओवरकम दीज काइंड्स ऑफ एरर्स और शॉर्टकमिंग्स. नॉट डेलिबरेट, नॉट डिजाइन, हो जाता है. इसीलिए जरूरत है रिविजिट ऑफ ए टॉपिक का. जो मैं कह रहा था, आई वॉज रीडिंग फ्रॉम दिस पोर्शन ऑन क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस के आएंगे. वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो मैंने डिस्कशन किया जस्ट बिलो, ये वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स ये हैं. ये वाला जो वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स which have a relevance for career, it should be relevant to the career in civil services. अपने आप को और नैरो करते जाओ. Not relevant for becoming astronaut, not relevant for career in army, not relevant for career as a sports person. It should be relevant for career in civil services. वाला जो टॉपिक आपको न्यूज़पेपर में दिखा है, उसको आपको न्यूज़पेपर या बुक्स, वही आपके लिए रिलेवेंट है. इफ यू कन्फाइन योर सेल्फ तो आपका चीजें लेस कॉम्प्लिकेटेड होगा. न्यूज़पेपर में कुछ लोग लगते हैं पढ़ने, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर चले जाते हैं. जर्नल कोई मिल गया उनको, लगे पढ़ने. प्लीज डोंट डू इट. बट एट द सेम टाइम यू शुड टेक थिंग्स सीरियसली इन ए सिंपल वे. ठीक है. द क्वेश्चंस आर लाइकली टू टेस्ट candidates basic understanding of all relevant issues are relevant for career in civil services. It should be relevant, it should be current and relevant for civil services. अब हम थोड़ा इंडियन पॉलिटी पर आते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हम GS2, नाउ कन्फाइन योरसेल्फ टू GS2. अभी तक तो मैं थोड़ा सा ज्यादा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहा था ऑन ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. नाउ वी विल बी कन्फाइनिंग आवरसेल्फ टू द इंडियन पॉलिटी इशू. द GS पेपर 2 covers Indian polity, governance, international relations and social issues, social justice issues. अभी मैं डिस्कशन पर्पसेस के लिए पॉलिटी पर अपने आप को कन्फाइन कर रहा हूं. IR, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस को अभी थोड़ा सा अलग कर रहा हूं. 4 टॉपिक थे, आई रिपीट. इंडियन पॉलिटी, GS पेपर 2, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, IR एंड सोशल जस्टिस. इस 3 को अभी मैं थोड़ा सा डिस्कशन पर्पसेस के लिए साइड में कर रहा हूं. इंडियन पॉलिटी के बारे में अपने आप को कंसंट्रेट कराओ. यू आर एबल टू सी दिस. यू हैव द ऑप्शन ऑफ कमिंग आगे ऑल्सो. यू आर कंफर्टेबल देयर, नो प्रॉब्लम. हम यदि ईयर वाइज देखते हैं कि ये चारों में इंडियन पॉलिटी वाले पार्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द GS पेपर 2. यही है हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का. शुरुआत हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से कर रहे हैं.
एवरेज क्वेश्चंस GS2 पेपर में फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी पार्ट ऑफ GS पेपर 2 15 ऑन एन एवरेज क्वेश्चन पूछा जाता है. 13 to 17 क्वेश्चंस आर आस्क्ड. 2025 में 16, 24 में 19 क्वेश्चंस. यदि आप GS2 पढ़ते वक्त इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो एंड यू स्टडी इन सच ए वे दैट आप क्लासरूम नोट्स के आधार पर ये 19 में 19 क्वेश्चंस, अब तो मैं कहूंगा योर टारगेट शुड बी 19 आउट ऑफ 19. व्हाई शुड यू मिस ए क्वेश्चन एट ऑल? इफ यू मिस ए क्वेश्चन, I will not blame you. If you miss a question, I blame the person who is teaching you. Since I will be teaching, I will blame myself. And I don't want to blame myself. Therefore, I want you to answer all those 19 questions. Making a sort of compensation for the other side of the GS paper 2. किसी कारण सोशल जस्टिस में थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया, IR में टेढ़ा क्वेश्चन आ गया, इसके टेढ़े क्वेश्चन को तो मैं सीधा कर दूंगा. मेक नो बोन्स अबाउट इट, देयर इज नो कंफ्यूजन एब्सोल्युटली अबाउट इट. इसका टेढ़ा क्वेश्चन आप सीधा करोगे इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ मी. तो ये क्वेश्चन आपको, इतने क्वेश्चन आते हैं, आप आंसर कर सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. 16, 19, 15, 13 क्वेश्चंस, अरे क्या हो रहा है यार, आते हैं. देयरफॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस बड़ा हाई वेटेज कमांड करते हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर, माने GS पेपर 2 के अंदर, इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट. ठीक है, थोड़ा और देखें इसके बारे में किस तरह का बनता है. अब एक तो ये 4 में इसको मैंने देखा पोजीशन किया. अब इस पोजीशन के अंदर, अब पॉलिटी के अंदर इतने सब टॉपिक्स हैं मोटा मोटी, इस ब्रॉडली स्पीकिंग. इसमें देखते हैं कि पार्लियामेंट, उसके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके अमेंडिंग पावर्स एंड एक्ट्स मेकिंग पावर, मिसलेनियस डिलिमिटेशन ट्राइब्यूनल से, यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव से, जुडिशियरी से, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर से, और इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, PRI वाला जो उसका पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, PRA से, इतनी परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं. इसको आप देखोगे तो जब आप पढ़ना ना, तो लेजिस्लेचर पहला 2 है. पहला 2 इज लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, इंडिया में बोलते हैं, अमेरिका में उसको कांग्रेस बोलते हैं. ठीक है, स्टेट में उसको असेंबली बोलते हैं. कैसे बोलते हैं वी विल स्टडी. इससे आप देखो 39% क्वेश्चंस है सिर्फ इसका माने जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना तो आप लेजिस्लेचर वाला पार्ट को मजबूत रखना है. एक क्वेश्चन छूट नहीं सकता उससे, और नहीं छूटना चलेगा, और नहीं छूटेगा. फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट से 14 क्वेश्चंस. इसी तरह के ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है. दिस डिस्ट्रीब्यूशन अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक्स लाइक पार्लियामेंट प्रोसीड्योर्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. आप समझ गए कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है जब आप किताब पढ़ोगे. अब आप ये देख रहे हो ना, ये डेटा. एंड नाउ अगेन कम बैक टू द UPSC syllabus. You are not supposed to have specialized knowledge. You are supposed to have a general basic understanding. तो पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर एंड उसके अमेंडिंग पावर्स is very nicely covered in any one book. आप कोई एक किताब पढ़ लो, इससे ज्यादा जानने की जरूरत प्रोबेबली नहीं है. और जो कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट करने की जरूरत है, इट विल बी डन बाय द फैकल्टी. न्यूज़पेपर
फॉर दिस पर्पस विल हेल्प यू कि आज जो अमेंडमेंट है वो कल एक साल पहले वाले एडिशन वाले बुक में तो नहीं लिखा होगा ना, इट इज नॉट रिटन. आज टुडे द पार्लियामेंट इज इन द थिक ऑफ 130th अमेंडमेंट बिल जो which was introduced in the last week लोकसभा. तो पार्लियामेंट इज, तो माय ड्यूटी इज टू apprise you of the 130th constitution amendment bill and effort, and through the newspapers you will be able to know it. So newspaper will keep on adding your value to it. Value addition of the knowledge will be done based on this infrastructure. ये उस टाइप का जैसे मकान बनता है ना, जब जो अपना घर बनाते हैं तो उसके नीचे कितना सॉलिड फाउंडेशन करते हैं. पिलर लगाने के लिए उसको गड्ढा खोदते हैं, उसमें पिलर, लोहा, टाटा स्टील का छड़ होना चाहिए, सीमेंट भी एसीसी का होना चाहिए, कोई चालू सीमेंट. तो आप यदि स्ट्रॉन्ग सीमेंट, स्ट्रॉन्ग कंक्रीट, स्ट्रॉन्ग आयरन स्टील डालोगे तो बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा. 4 मंजिल की जगह 5 मंजिल भी बना सकते हो, which will be added by the newspapers and faculty and other. So this is basically the foundation on which you have to develop your edifice of knowledge. पढ़ना क्या है, क्या कैसे पढ़ना है, ये हम लोगों ने अभी बात की, भी just discussed. How to read it, what are the primary source. एक बड़ा अच्छा कहानी है, सरकारी नौकरी सरकारी किताब. सरकारी नौकरी एनसीईआरटी इज योर सरकारी किताब. Full stop. Begin your career by studying NCERT. 9th, 10th, 11th, 12th की किताब आपके पास होना चाहिए. And these are your personal books. Don't depend on उससे मांग लेते हैं, उससे मांग लेते हैं, वहाँ ले लेते हैं, वो ला ले, सेकेंड हैंड ले लेते हैं, थर्ड हैंड ले लेते हैं. नो सॉरी, ज़्यादा प्राइस भी नहीं होता, 50, 60, 70, 75 रुपए का एक किताब है. ये करीब 14-15 किताब पूरे जीएस पेपर्स चारों के लिए है. इंडियन पॉलिटी के लिए 2 किताब, जो पॉलिटिकल साइंस का किताब यू गो टू एनी शॉप, एनसीईआरटी की किताब आप खरीद लो. जरूर आपका वो पर्सनल किताब होना चाहिए. एंड यू स्टार्ट विद द चैप्टर 1, वेरी सिंपली रिटन. वो आपको कैसे, व्हाट आर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो लिखा था हमारे उस चैप्टर में, लिखा था ना रेलिवेंट, रिकॉल कि नहीं करोगे तो मैं तुरंत ले आऊंगा उसको. relevance for a career in civil service, general awareness, the candidate must give a relevant, meaningful and succinct answers. वो जो relevant book है, information है, this is provided by NCERT. ठीक है, तो you should start your career. जैसे फुटबॉल खेल शुरू होता है तब पहला बॉल थोड़ा सा पास देके बगल के प्लेयर को देता है, देखते हैं ना, देखा आपने फुटबॉल का गेम कैसे शुरू होता है? सेंटर में बॉल होता है, कोई आकर के छोटा सा पास अपने, नॉर्मली गोल पर तो नहीं करता है ना, बस छोटा सा पास अपने साथी को देता है. दिस एनसीईआरटी इज दैट छोटा पास. जस्ट क्या कहते हैं उसको, यू कंफर्ट योर सेल्फ बाई किक स्टार्टिंग योर जर्नी बाई रीडिंग द चैप्टर 1 ऑफ chapter 1 of NCERT books. Indian Constitution at work. यहीं से आप अपना करियर शुरू करिए, पढ़ाई का जर्नी का फर्स्ट स्टेप इज NCERT books. Start with basic and 9 to 12 to join in polity and build foundational knowledge. कोई अच्छा लगे and keep a copy with yourself. इस पर मैं थोड़ा और इलेबोरेट बोल देता हूं. एवरीबडी इज ए डिफरेंट इंडिविजुअल. ये कुछ है, ये कुछ है, मैं कुछ हूं. सी इज समथिंग एल्स, सी इज समथिंग एल्स. सबके अपने अपने पढ़ाई के तरीके हैं. यू विल हैव टू आइडेंटिफाई योर वेज ऑफ स्टडिंग. हर वेज ऑफ स्टडिंग मे नॉट बी गुड फॉर हर वे ऑफ स्टडिंग.
कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई टीवी के सामने पढ़ता है, कोई कुछ चलते चलते कुछ पढ़ते हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हैं, कोई अकेले में पढ़ना चाहता है, उसको डिस्टर्ब, कोई लाइट जला के सोता है, कोई लाइट बंद करके सोता है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल वी हैव। एनसीईआरटी आप चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू को, बगल में एक कागज और कलम जरूर रखो। कागज मीन्स कॉपी, मोटा कॉपी बहुत मिलता है, ये सब कॉपी उपी खरीद के रखो, वो टेररिज्म में नहीं आता है। अदरवाइज तो बहुत टेररिस्ट यहाँ इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स, यहां से लेके वहां तक बड़े पड़े। जो वर्ड लगे आपको कि इसका वर्ड हमको नहीं पता है मीनिंग, ऐसा बहुत वर्ड आएगा आपके पास, यू डोंट नो द मीनिंग, डोंट वरी, नोट डाउन। आजकल तो लोग गूगल से करते हैं, हम लोग के ज़माने में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रखा करते थे हम लोग। आजकल गूगल बाबा हेल्प्स यू, कीप ऑन बॉदरिंग बाबा, टेक द हेल्प ऑफ बाबा एंड आंसर डेवलप करते रहो। एक दिन में 4-5 डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग जरूर आने चाहिए, और वर्ड्स उस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग भी निकलता रहे, और पढ़ते चलो पढ़ते चलो, गाड़ी आगे बढ़ाते चलिए। कुछ नहीं समझ में आए तो जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। फैकल्टी इज ऑलवेज एट योर पे रोल बिकॉज यू आर पेड समथिंग, तो वो आपको बताएंगे, बताना चाहिए, बताएंगे भी। तो देयरफॉर दिस इज हाउ यू स्टार्ट पिकिंग अप। Structured class notes will be provided. It is my duty. अबे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक बता ही दिया मैंने, ज्यादा चिंता नहीं करना इंडियन पॉलिटी में। मैं वो चैलेंज भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं जब आप कहो कि सर मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना चाहते हैं, तब आप हमको इंडियन पॉलिटी के 19 आंसर्स में 19 आंसर मिलेंगे कि नहीं, तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज। यू डोंट रीड लक्ष्मीकांत, keep attending classes daily, I'll ensure 19 out of 19 marks, full stop. I'm going to accept it. स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक हो गया। करंट अफेयर्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, न्यूज़पेपर, हिंदू, एक्सप्रेस। These newspapers give you constitutional amendment, 130th amendment अभी चल रहा है, it will help you. Judicial decisions आ रहे हैं कुछ। कल I was discussing with somebody, yesterday's newspaper, probably Indian Express, no, Hindu only, yeah, day before yesterday, the Delhi High Court made a difference between public interest and interest of the public. Similar sounding words with great difference in its meaning. Interest of the public and public interest. पढ़ना परसों का, अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा। You read and let me know कि what is the difference between the two. And from the newspaper you will be able to know the difference. Day before yesterday, Hindu newspaper. Practice and solve previous year's question papers. Take mock tests. Keep on writing answers, mock tests, question papers. ये वो आप लोग सब लोगों ने 10th परीक्षा पास की होगी। 10th परीक्षा जब पास करते हैं, एवरीबडी हैज हिज ओन वे ऑफ स्टडीइंग। एटलीस्ट मैं जब 10th का एग्जाम दे रहा था, आप लोग 3 बार जन्म थे तब मैं 10th का परीक्षा दे रहा था, एटलीस्ट 2 बार तो जरूर। जब मैं 10th का एग्जाम दे रहा था तो मुझसे कहा गया कि आप अब क्वेश्चन आंसर करो 2 months बिफोर। हमारे जमाने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई ढर्रा नहीं था। एक एग्जाम होता था स्कूल में, 10th की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास 10th भी नहीं था, 11th था हमारे समय। 11th में एक होता था स्कूल लेवल, एक तो बोर्ड का एग्जाम होता है, सीबीएसई का हो या लोकल स्टेट बोर्ड था, मैं स्टेट बोर्ड में था। तो उस समय कहा गया कि जितना स्कूल खुद अपना एग्जाम लेता था, तो उस स्टेट में करीब 25 टाइप के
स्कूल का क्वेश्चन पेपर छपा था. That was compiled and sold in the newspaper, in the book form, and available at the shops. So I was advised कि आप सारे 25 तरह के एक ही सब्जेक्ट पर, यदि फिजिक्स पेपर है तो 25 तरह के क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करिए. एंड टू माई, माने क्या मैं बताऊं, शेयर नहीं कर पा सकता हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा था, एक क्वेश्चन पेपर जो हूबहू हमको बोर्ड के एग्जाम में आया. हूबहू लगता है उसी से उसने जल्दीबाजी में ले लिया. Those who read it that way got good marks. I was one of those fortunate. Therefore, previous questions are very relevant. यूपीएससी में इसकी संभावना तो बहुत कम है कि प्रीवियस का आपको पूरा का पूरा आएगा, बट दे कैनॉट चेंज द पैटर्न, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी अनाउंस द रूल ऑफ द गेम. अवेयरनेस, रेलिवेंस, नॉट स्पेशलाइज्ड, ये फ्रेमवर्क में ही क्वेश्चन पूछेगा वो. तो देयरफॉर your rule of the game has already been made available to you. आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको परफेक्शन होगा. सोचो ना, कोहली, तेंदुलकर और जितने प्लेयर हैं रोज प्रैक्टिस क्यों करते हैं? वो तो इतने बड़े प्लेयर हैं, तभी उनको प्रैक्टिस छोड़ देना चाहिए था, छोड़ना चाहिए था ना. जिस दिन मैच होता है उसके सुबह सुबह 2 घंटा वो लोग पसीना बहाते हैं, ठुक 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 ठुक, बैट्समैन कर रहा है, बॉलर बॉलिंग कर रहा है, फील्डर फील्डिंग कर रहा है. क्यों? तो इतना कोहली हो गया, कोहली को तो चादर तान के सोना चाहिए कि मैं तो इतना बड़ा प्लेयर हूं, अगले दिन तो जाके सेंचुरी मारूंगा ही मारूंगा. नो, ही कीप्स ऑन प्रैक्टिसिंग. खेल नहीं भी, टेस्ट मैच होगा 3 महीने के बाद, वो डेली, मैं एक जहां मैं रहता हूं वसंत कुंज में, तो आई यूज टू सी दिस ईशांत शर्मा. अब तो थोड़ा फेड कर गया. ईशांत शर्मा वो एक प्रैक्टिस करता था जिम से बाहर ग्राउंड पर. वो पैर में लोहा के, समझिए एक तरह से बेड़ी बांध के और दौड़ता था टू कीप हिमसेल्फ फिट. जब वो दौड़ता है, कोहली इतना बड़ा आदमी, आप किस खेत की मूली हो भाई? आपका 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 बैट बॉल तो किताब है. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है. योर मोस्ट प्यारेलाल इज लक्ष्मीकांत, and your most best companion is in the Hindu and the Indian Express or Times of India, whatever. आप इसके साथ रहो ना, इसके साथ प्रैक्टिस करो, इसके साथ खेलो, इसके साथ दोस्ती करो ना. सो प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, अब आ जाओ मेंस पर. जब हम तैयारी करते हैं तो मेंस मान के चलते हैं कि प्रीलिम्स में मेरा होगा. ये आज तक मैंने कुछ ही स्टूडेंट को नहीं देखा जो तैयारी कर, सर प्रीलिम्स में कैसे होगा उसके बाद मेंस पढ़ेंगे. आज तक ऐसा स्टूडेंट मैंने नहीं देखा. और यदि ऐसा स्टूडेंट हो तो कभी मेंस नहीं कर सकता वो. यू हैव टू एज्यूम दैट यू आर गोइंग टू पास योर प्रीलिम्स. हाँ, यस, आप उसके लिए मेहनत करिए. मेहनत करना तो आपका धर्म है, कर्म है, बट मेंस की भी तैयारी साथ साथ होती रहनी चाहिए. फ्रॉम द मेन इन द इंडियन पॉलिटी जीएस पेपर 2 इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं 25 में. अभी मैं देख रहा था 110 क्वेश्चंस आउट ऑफ 250, 110 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन पॉलिटी. बाकी उसके आईआर, सोशल जस्टिस, एक और कौन छूट गया, आईआर, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस, उसकी बात अभी अलग करिए. 46% ये करीब करीब आता है. ये तो 50% हो गया. 250 में 125 इज 50%. ये करीब, और ये तीनों 145 46% के आसपास आता है. 100 क्वेश्चंस में 46%, ऑलमोस्ट 50% इज फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी. बाकी 3 से 50%. इंडियन पॉलिटी का इंपॉर्टेंस देख रहे हैं ना कि इंडियन पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है. तो आप ये देखो कि इंडियन पॉलिटी से जब इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वी शुड कीप दिस इन व्यू. देखो, रूल ऑफ द गेम तो बता दिया यूपीएससी ने कि मेरा हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, और उसके क्वेश्चन पूछने के ट्रेंड से बाकी मैथमेटिक्स हम लोगों ने निकाला.
वो ये नहीं बता रहा है कि मैं ऐसा पूछूंगा। ये हम लोगों का करामात है कि फ्रॉम द डेटा माइनिंग एंड डेटा एनालिटिक्स हम लोगों ने ये ट्रेंड निकाला कि आप किस तरह का क्वेश्चन पूछोगे। जैसे अब आप फेसबुक देखोगे तो किसी पर्टिकुलर जगह पर एक बार जाओ तो दाएं दाएं उसी टाइप का प्रचार। आप एक बार शॉपिंग निकाल दो अमेजोन का, तो अगले दिन अमेजोन जो भी कार्यक्रम करेगा वो आपके पास पॉपअप हो जाता है। एक बार यूपीएससी ने ऐसा अपना क्वेश्चन बनाया, 10 साल तो हम लोगों ने उससे डेटा निकाल दिया कि आप इस तरह का क्वेश्चन पूछोगा, मेकिंग योर टास्क इजियर कि हम इंफेसाइज कहां पर करें। पढ़ना सब कुछ है, इंफेसिस कहां पर दें। तो आप इसी क्रम में देखिए कि इंडियन पॉलिटी ट्रेंड्स अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी फॉर मेंस एग्जामिनेशन। डीप वर्ड से मतलब फिर मत समझना मैंने जो बोला है उसका ही कंट्राडिक्टरी वर्ड है। डीप डज नॉट मीन कॉम्प्लिकेटेड, डीप ऑल्सो डज नॉट मीन एक्सपर्ट नॉलेज। डीप मीन्स नॉट शैलो, ये नहीं कि सुना और समझे कि हमको तो आता है। नो, appropriate knowledge about the issue. मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस, आई विल गिव यू 20 सेकेंड्स, पढ़ लो आप। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिटी में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 4 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट से 2, एक डायरेक्टिव डीपीएसपी बोलते हैं उसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव से 2, जुडिशियरी एंड जुडिशियल सिस्टम से 2, इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इलेक्शन कमीशन हो गया, मिसलेनियस ट्राइब्यूनल, लोकल गवर्नेंस वगैरह से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही ट्रेंड। तो यदि आपको एक दिन में तैयारी करनी है, मान लीजिए सपोज कीजिए मैं कल टेस्ट ले रहा हूं, सिविल सर्विस अनाउंस करे कि कल टेस्ट लेंगे, तो आप सबसे ज्यादा इंफेसिस इसी पर दोगे ना कि इससे 4 क्वेश्चन पूछेगा, नहीं 4 पूछा तो कम से कम 3 तो पूछेगा ही पूछेगा। और कोई आदमी जिसको हमने नहीं बताया ये ट्रेंड, वो सबसे ज्यादा ध्यान देने लगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो किसको फायदा होगा, आपको कि उसको? आपको फायदा होगा। आपको क्यों फायदा होगा? क्योंकि मैंने बताया है। ऐसे ऐसे गुण मेरे पास और है जो मैं भी शेयर नहीं कर रहा हूं। इतना हमको, अब मेरे तर्कस में और भी तीर हैं which will come out when required and we start our journey. What is expected? You should be very clear about the subject. बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए। Either you know things and I don't know things. ये बीच वाला जो मामला है ना कि कुछ पता भी और कुछ नहीं भी पता, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसी में स्ट्रगल करते रहते हैं कि हमको कुछ पता होता है, कुछ नहीं पता होता है। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स इज वेरी बैड। पढ़ने बैठोगे तो ये मान के चलोगे कि हमको आता है, आज हम नहीं पढ़ोगे, चाय पीने जाओगे, अरे यार हम पढ़े नहीं, हमको तो कुछ आता नहीं है, न चाय पियोगे न पढ़ोगे, कहीं के नहीं रहोगे। यदि ग्रे एरिया में घूमते रहोगे, इफ यू आर रिवॉल्विंग, ये स्टेट ऑफ अफेयर सबके जीवन में आता है। माई जर्नी इज फ्रॉम दैट ग्रे एरिया टू व्हाइट एरिया। मुझे आता है, मैं अभी सेमी वाले में हूं, मुझे आता भी और नहीं भी आता है, लेकिन मैं अपने जर्नी से जहां आता है वो वाले एरिया में अपना स्टेप बढ़ाऊंगा, मेरी जर्नी वहां जाके रुकेगी। जर्नी मत छोड़ देना। मैं तो कई बार कह रहा हूं कि नोबडी इन द क्लास, आज इंडियन पॉलिटी का हम क्वेश्चन सेट करके दे दें तो हर एक आदमी 150 वर्ड लिख देगा। सिर्फ अंतर यही होगा कि वो बीटिंग अबाउट द बुश होके रह जाएगा, प्रिसीजन की कमी होगी, बिकॉज क्लैरिटी की कमी है। हम ग्रे एरिया में सारे लोग हैं। फ्रॉम ग्रे टू व्हाइट इज द पर्पस ऑफ आवर जर्नी। यदि मुझे कभी बुक लिखना पड़ा, लिखूंगा, मैं लिखूंगा, जरूर लिखूंगा, यही मेरे बुक का टाइटल भी है, फ्रॉम ग्रे टू व्हाइट। ग्रे में सभी लोग हैं। नॉन ग्रे में जो है ना, जो ब्लैक में है, वो तो जानता है कि हमको नहीं आता है, वो तो अच्छी स्थिति में है ग्रे वाले से। ग्रे को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि माई ग्रे विल लीड्स टू द व्हाइट, ये पता है तो आप चले जाओगे। लेकिन कई लोग ग्रे को ही व्हाइट उसमें दिखता है ना, जब पढ़ने बैठोगे तो लगेगा हमको आता है, आई नो एवरीथिंग,
और जब किताब बंद करोगे, जब आता है तब तो बंद करोगे ना, तो मौज करने जाओगे, मौज करने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि वहां पता चलेगा कि हमको नहीं आता है, वहां ब्लैक दिखेगा। तो ये ब्लैक व्हाइट का जो इम्बैलेंस है ना, वो आपको तंग करता रहेगा लाइफ में। ऐसे स्टूडेंट्स बहुत आपको दिखाई पड़ेंगे, जो मिनट मिनट पर चाय पीने जाए, समझो ग्रे एरिया का लड़का है या बच्चा है या बच्ची है। जो ब्लैक वाला होगा वो तो कहेगा मैं जा रहा हूं पढ़ने, 3 घंटे पढ़ूंगा, जाएगा पढ़ेगा। व्हाइट वाला यदि मौज करा 2 घंटे मौज करेगा, क्योंकि वो तो आता है, एंड ही श्योर ही नोज एंड ही नोज आल्सो। So from your journey is to from gray to white, from uncertainty to certainty. Answer writing, yes, ये तो इस पर तो बहुत मुझे बोलना था। I have repeatedly said everybody knows the answer of a question. I again say 4 4 8 10 11 12 14 15 18 19 लोग हैं, एंड विथ ऑनलाइन फ्रेंड्स। कौन आ गया नया, कोई आया? सुमन कुमारी, यस वेलकम सुमन। भार्गव कटारिया इज ऑलरेडी है, जानवी पटनायक, सक्षम सिंह, ओके फाइन। यदि क्वेश्चन पेपर दे देना तो एवरीबडी कैन राइट 150 वर्ड्स, बिकॉज आज नहीं, हमारे पढ़ाने के बाद भी ये प्रॉब्लम आएगी कि कंटेंट आपके पास होगा, नॉलेज का बॉक्स आपके पास होगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आंसर टू द क्वेश्चन। कंटेंट सबके पास है, इसके पास भी कंटेंट है। आज नाम इसका पूछ दें हु आर यू, तो ही हैज द कंटेंट। जब मैं पूछूंगा राइट इन टेल मी इन 3 सेंटेंसेस, देन वो प्रोसेसिंग, जो इसका माइक्रो प्रोसेसर है ना बॉडी के अंदर बैठा हुआ, स्टार्ट प्रोसेसिंग कि व्हिच 3 सेंटेंसेस आर रेलेवेंट फॉर मी। वो जो 3 बोलेगा वही बोलना आंसर टू द क्वेश्चन है, अदरवाइज कंटेंट एवरीबॉडी हैज। व्हाट इज दैट 150 वर्ड्स इन 20 मिनट्स या 10 मिनट्स? ये आएगा प्रैक्टिस से। इट इज पोस्ट स्टडी या स्टडी के पैरेलल भी चल सकते हैं एक्सरसाइज। आपको साथ साथ चलना है। टॉपिक पढ़ा, अब हम इस पर आंसर, एक कंटेंट पर 10 तरीके के क्वेश्चन हो, देयर कैन बी 10 क्वेश्चंस आफ्टर दैट कंटेंट। यू हैव टू फ्रॉम डिफरेंट एंगल, इंफेसिस चेंज करेगा, ठीक, देन इंफेसिस चेंज करेगा तो यू हैव कीप रिपीटिंग आंसर। आप आंसर लिखो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर लिखोगे, मैं इवेलुएट करूंगा, आपको बताऊंगा इस आंसर में, इस पर बेटा थोड़ा आगे बढ़ो, इसको नीचे लाओ, इसको बैकग्राउंड में लाओ, ये कंटेंट इंफेसाइज हो गया ज्यादा, कम इंफेसिस, ये रिपीट हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट भी करते हैं हम लोग, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, क्वाइट नेचुरल। तो आपको वो रिपीटिशन से मैं आपको अवेयर कराऊंगा, आप नहीं अवेयर होगे। मैं जब बताऊंगा कि देखो ये दिस आइडिया हैज बीन 2 times रिपीटेड, तो यूजलेस हो गया, आपका वर्ड भी खा गया और टाइम भी खा गया। व्हाई यू आर रिपीटिंग? ऐड न्यू। इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया, डोंट वेस्ट योर टाइम, एटलीस्ट दूसरे क्वेश्चन का आंसर करने में समय लगाओ। 150 मांगा है, आपको इसका आंसर 138 वर्ड्स में ही हो रहा है। रिपीट करके आप 150 तक खींचो मत, 138 पर क्लोज करो। वो 12 वर्ड्स तो यूजलेस हो गया, लेकिन उसमें जो आपका 3 मिनट समय बचा, वो यूज इट इन अदर आंसर टू द क्वेश्चन। तो दैट इज द प्रैक्टिस, एंड ओनली थ्रू द प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग एन आंसर। ये हम लोग के समय नहीं था। हम लोग के समय इतना ये नहीं था कि आपको 150 वर्ड 6 मिनट में 8 मिनट में लिख के देना है। हम लोग स्वच्छंद थे, लिखते रहो लिखते रहो, 6 पन्ना तक लिखते रहो। डिफरेंट क्वेश्चन पेपर हो सकता है 5 साल बाद फिर चेंज हो जाए, माने इतना भी लिखते रहो लिखते नहीं था, बट यस देयर वाज मोर फ्रीडम देन यू हैव। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एथिक्स, ये तो एथिक्स पेपर जब पढ़ेंगे, क्योंकि इंडियन पॉलिटी इससे में भी आपको काम आएगा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तड़का लगा दिया जहां आपने उस पर, जैसे दाल में लगाते हैं ना, ऊपर से आग के साथ उसमें डाल देते हैं, कहाँ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो तो आपका एथिक्स एंड एसे पेपर को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना समेट लेना, समेट लेता है, इंक्लूसिव कर लेता है, फिर जा नहीं सकता कोई इधर से उधर। रिवीजन इज द मस्ट, रिपीट इट, रिविजिट इट,
revisit it and make lots of revisions. Revision is also very important. मैं revisit word अभी तक यूज कर रहा था. रिवीजन यदि आप समझते हैं तो रिवीजन समझिए. कीप ऑन रिवाइजिंग द सब्जेक्ट. इशूज 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो. नया नया दिमाग की बत्ती जलेगी आपको. अब तो ये टिपिकल सिलेबस है प्रीलिम्स का. देख लो करंट इवेंट. वो करंट इवेंट्स पूछ रहा है. करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल importance, history of India and Indian national movement, world geography, Indian polity, public policy, economics, entire चीजों का ये सिलेबस इज अवेलेबल. जनरल स्टडीज पेपर 2. ये मेरे लिए और आपके लिए ये रेलिवेंट है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वन बुक. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेयर आर्टिकल, यू शुड हैव ए कॉपी ऑफ इट. और एक और मैं ट्रिक्स बता ही देता हूं. इंडियन आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 30-40 ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो आपको पता होना चाहिए. आज का जिसने हिंदू पढ़ा उसको 2 आर्टिकल तुरंत मिल जाएगा. आर्टिकल 356 और 200. आज का हिंदू किसी ने पढ़ा है कि नहीं, पहले ये बताए. क्यों नहीं पढ़ा है ये भी मैं पूछूंगा यदि आई स्टार्ट. ये आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू लाइक दैट. क्यों नहीं पढ़ा? ना, दिस इज नो आंसर. आज नहीं आया क्या? क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया. ठीक, गुड. देन लेजिटिमेट आंसर. लेकिन कल के हिंदू में, कल का हिंदू पढ़े कल के हिंदू में 356 और 200, नॉट टुडेज. जिसमें जुडिशरी ने सवाल पूछा है कि आर्टिकल 356, अभी नहीं समझोगे आप लोग, जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझोगे. आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट इट. तो ये 2 आर्टिकल आपका जिसका जो ईयर डेट ऑफ बर्थ है, जिसका जो है, सबका होगा कुछ कुछ कुछ. वो आर्टिकल किससे कंसर्न है आप जरा याद कर लो. फादर, मदर, कजन, सिस्टर, सिबलिंग्स, 4-5 तो हो ही जाता है फैमिली में. कर लो ना, देखो ना, सब रिलेवेंट निकलेगा बाद में. और 15 आर्टिकल तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा बेमतलब में. जितना बार ना पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 1-2, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स, सब आपको याद हो जाएगा. और जो आपका डेट ऑफ बर्थ वाला है ना, उससे उसको यही आइडेंटिफाई, उसका नाम रख देना आर्टिकल 46. जो भी आर्टिकल है उसका नाम. देखो ना फैमिली में ऐसा करके कितना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको 15 दिन में कैसा समझ में आता है. अपने क्लोज फ्रेंड्स का नाम रख दो उसी आर्टिकल के नाम पर, जिस दिन उसका डेट ऑफ बर्थ है उसी वो आर्टिकल, लेकिन याद कर लो. दीज आर द वेज टू लर्न. 324 आर्टिकल इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है. मेरा रूम नंबर हॉस्टल में 324 हुआ करता था. ये ट्रिक मुझे सपना नहीं आया, हमको भी किसी ने बताया. उस दिन मुझे 10 आर्टिकल सुबह से शाम तक याद हो गए, इंक्लूडिंग द 324. आज तक याद है 40 साल बाद, क्योंकि मेरा रूम नंबर था 3rd फ्लोर पर 24, JNU सतलज हॉस्टल. याद है तो है. जो जिस रूम में रहता है आप लोग, यदि जो आपका एड्रेस है उसका रख लो, आर्टिकल याद कर लो. देखना वो रेलिवेंट इररेलेवेंट कुछ नहीं होगा, वो आपको याद हो जाएगा तो याद हो जाएगा. 15 आर्टिकल तो ऐसे ही याद हो जाएगा फॉर द फन ऑफ इट में. कर लो. लेकिन ये मत समझना कि हमको इतना ही ट्रिक्स है, और भी ट्रिक्स है, बाद में बताएंगे. कॉन्स्टिट्यूशन फील आता है उसे जब आर्टिकल पढ़. हाँ, एक चीज और, आर्टिकल पढ़ के दुखी मत होना. आर्टिकल पढ़ोगे तो समझोगे नहीं, ये बात भी है. बहुत लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. उस लीगल लैंग्वेज को फिर हम चले जाएंगे. यू शुड बी जनरल अवेयरनेस, नॉट एक्सपर्ट. तो आप लीगल से आप उसका व्यू जान जाओ. व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इट वांट्स टू से, एंड हैव इट इन योर ओन वर्ड्स. नॉट दैट लीगल, टेक्निकल, लीगल, पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में जाना नहीं जरूरी है. whereas this article read with para so and so, and whereas not standing anything said in previous article, sorry, ये सब नहीं जानना है.
लेकिन आर्टिकल को जानना है। ठीक। सैलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, इस बार 2025 में क्वेश्चन आया है, आरपी एक्ट। तो इस बार जो भी एक दिन किसी दिन मौका मिलेगा तो आपसे शेयर मैं करूंगा। इस बार जो 25 में एग्जाम में क्वेश्चन आया है, 9 क्वेश्चंस आए हैं, टोटल 9 क्वेश्चंस। इसमें 7 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको कोई भी आदमी वर्थ हिज एक फैकल्टी जो पढ़ा रहा होगा 3-4 साल से, वो गेस कर सकता था कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा। इतना करंट पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर जो क्वेश्चन है, वो तो लगता था कि वो नहीं क्यों आएगा, नहीं आता, हम गलत हो जाते, लेकिन गेस वर्क में वो आ रहा था। 2 क्वेश्चन वॉज ए रेगुलर क्वेश्चन। सब गेस ही कर लोगे तो साले को यूपीएससी का क्रेडिबिलिटी क्या होगा। तो देयरफॉर वेरी रेगुलर क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, बाकी तो 7 मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस है। डेवलपमेंट ऑफ, ये सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे। Again, your book list. Anybody can help me? हाँ, ये रहा आपका रेफरेंस बुक, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डी बसु, बी कैपिटल से होना चाहिए लेकिन नहीं है, डी बसु, सुभाष कश्यप, द हिंदू, क्लास नोट्स, ये दोनों देखना। यदि आपके पास ऐसा है तो लेना, नहीं लेना, मैं अपने नोट्स में ये दोनों कवर करूंगा ही करूंगा। दीज 2 बुक्स आई हैव माई पर्सनल कॉपी। तो मैं नहीं भी चाहूँ तो मैं, मेरे पास लक्ष्मीकांत ही नहीं है, तो हम ये 2 आपके लक्ष्मीकांत मिला के तीनों से आपको नोट्स बन जाएंगे। क्लास नोट्स, न्यूज़पेपर द हिंदू, एक्सप्रेस भी, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लेना, मेंटली इसको पढ़ लो, इवन इफ नॉट रिटन हियर। ऐसा बहुत चीज होगा, यू विल हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स ऑल्सो, एंड यू हैव टू रीड व्हाट इज नॉट रिटन, एंड यू हैव टू डिलीट व्हाट इज रिटन। बाकी तो हवा पानी, लक्ष्मीकांत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डी बसु, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके प्रोविजन, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, दीज आर द इन द सिलेबस। वी हैव फिगर बना के हम लोगों ने लिखा है, इतना ही का अंतर है, अदरवाइज नथिंग न्यू। डोंट सी इट इन ए कॉम्प्लिकेटेड वे, सी इट इन ए सिंपल वे। पैरेलल स्टडी प्रेसिडेंट का, हम लोग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का, गवर्नर के साथ करेंगे, तो पढ़ाई का ढर्रा भी है। गवर्नर पढ़ोगे तो रिमेनिंग एरियाज, हाँ ये हम लोग और इसमें ऐड करेंगे, स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट, टेबल ऑफ द प्रेसिडेंट्स, हिस्ट्री, एवोल्यूशन, बिल्स, एक्ट्स, करंट इशूज में अभी जो बिल, एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस में क्या डिफरेंस है, क्यों, क्या, कैसे है, राइट इशूज, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसीज, इलेक्शन, आरपीए, जीएस2 में, द हिंदू, एडिटोरियल, नेशनल, इस समय तो आप लोग अपने होशियार आदमी हो। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। यदि मुझे लिखे तो किसी ने बना के मुझे दे दिया यार, यदि मैं रहता तो पेशेंस वर्ड नहीं यूज करता, क्योंकि आई एक्सपेक्ट यू टू बी पेशेंट। पेशेंस नहीं रखोगे ना तो मेरा तो कुछ नहीं तुम बिगाड़ पाओगे, सिर्फ अपना बिगाड़ोगे। मेरा क्या बिगाड़ोगे अब यार, नहीं कुछ बिगड़ेगा ना, अपना बिगड़ेगा, गार्जियन का बिगड़ेगा, फ्रेंड्स का बिगड़ेगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ योर एम्बिशन, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स विशेस। वी आर विथ यू, we are solidly behind you in your aspiration to become whatever you want to be. We will not leave you in the journey itself. We will be hand holding till you achieve your journey. It's a 2-3 hours, 2-3 years journey if you are beginning the journey right now. Therefore have patience, not because it is written here. My good wishes,
हिंदी में कहें तो आशीर्वाद, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको डोंट स्माइल ऑन दिस, इज वेरी, आशीर्वाद इज ए वेरी वेरी इफेक्टिव टूल. और मैं तो जो हूँ अपने गुरु के आशीर्वाद से हूँ. जब मेरा इंटरव्यू था 25 में 1988, ठीक, दिन थर्सडे, आज ही का दिन था, थर्सडे, इंसिडेंटली व्हेन आई एम मीटिंग यू. मेरा इंटरव्यू करीब 12 बजे मुझे बुलाया गया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज में. मैं आ रहा था आनंद विहार से, वहीं मैं टिका था. आनंद विहार, हाँ आनंद विहार. तो 3-4 दिन पहले मैं एक टीचर के यहाँ गया था, पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे. अब मैं बैठता हूँ जरा, यार ये तो हो गया, ये तो यूजलेस चीज़ है. तो जानवी, थैंक यू. भार्गव, कटारिया, सक्षम सिंह, सुमन कुमारी, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. यार हो गया इसको, यदि इसको क्या करोगे? हाँ, हो गया 1.25 घंटा में हो गया. लंबा करने से हम लोग पेशेंस के लिए भी धन्यवाद दे चुके हैं, तो अब तो चाह के भी नहीं, आई कैन कम बैक. हो गया, हो गया. अब थोड़ा अपना, हाँ. तो क्या हुआ, 25 को मेरा